Thank you, participants, for waiting for so long. Good evening. I, Tisha Gupta, interning with the Nature's Eye, would like to welcome you all for the one-day webinar on a study guide for preparation of CSIR NET GRF. The Nature's Eye, powered by Wildlife Arc, is a group of nature enthusiasts who wish to share their knowledge and experience with the world. They strive to bring informative and educational content from the tiny living world to the city dwellers. Their motto is to empower environmentalists everywhere, which aims to create opportunities for budding environmentalists, people related to this field, and also the ones who want to join it anew. Through their various offline and online programs, the workshop is one such attempt within the training and internship program, which we are a part of. There are a number of such events in the line as well. Now, coming to today's session, we are science graduates and postgraduates or academicians. Now, we often think how to approach a career as a researcher for which one should have qualified CSIR NET GRF. To walk ahead, and we have various questions associated. To answer all of them, we have Lalji Ram Tirath Kanodia sir as a resource person. Sir has done his MSc in cytogenetics and plant biotechnology. He has a research specialization in mycology and cytology. His thrust area of research is AM fungal diversity in coastal medicinal plants, forest plants. His working experience in academics includes the following. He's worked as an assistant professor at Sathai College, Ville-Parle from the academic year 2013 to 2015. He worked in Bhavan's College Degree Botany Department, Andheri West, from June 2016. Currently working as educator at IFS, Pune since July 2019. Currently work as a policy-making member of the Academic Audit Committee at Bhavan's College. Now coming to today's event, without any further delay, I request all the participants to keep themselves muted throughout the session. If you have any queries, please type it down in the chat box. We will take up all the questions by the end of today's session. Please wait till the end to know more about the discounted price of our CSR NET GRF workshop to be held on 2nd and 3rd December 2022. Thank you once again, and over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. I hope my voice is clear to all of you. Just make a confirmation. Yes, you're audible. Thank you. Thank you so much. So, thank you for a beautiful introduction. And thank you once again for giving me the opportunity to share my knowledge or little bit information what I'm having about the CSR net and all. I hope my screen is visible and the rest of the things are clear to all of you. Just make a confirmation. Oh, thank you. Thank you so much. So as the entire introduction is already made by ma'am, thank you so much for that. According to the today's title of the today's webinar is like we have to discuss about the various examinations of life sciences, and mainly we have to focus on the CSR net examination, right? So let's begin with that, and thank you to again that the nature science for this one-day webinar that is on a study for the preparation of CSR net GRF. Thank you for organizing this webinar, and again, thank you for giving me the opportunity to share my knowledge, share my information about this particular examination. So I hope the people who are there present there in this session, they are comfortable in both the type of languages. I will mostly prefer Hindi because Hindi is definitely easy and most comfortable for many peoples of India. So definitely I will try to share that
entire information, most of information in terms of like Hindi language. I will use that particular part. And I will try to give you the entire detailed information, a precise information, which is very important and required actually if you want to qualify this exam. So let's begin with that. So definitely, if you are planning to qualify this exam, that means you know about the benefit of this exam. अगर आप CSR नेट एग्जाम को प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, दैट मीन्स आपको पता है इस एग्जामिनेशन के फायदे क्या हैं, इस एग्जामिनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पता कर रखी होंगी, या फिर कहीं ना कहीं से जरूर आपने सुन रखा होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ qualifying CSIR UGC net examination. So as a few very important and very highlighting benefits, what we can generally share with all of students, all the aspirants who are actually preparing for this exam. So the benefits are like, if you want to go for your further studies, as you know that now the examination, this examination will be given by the appearing students also. So appearing students, they can also go for this examination. They can also give this examination. If they get qualified, they may get various benefit. And one of the benefit is if you want to go for your further studies or for your higher studies in a higher institutions of India. So definitely आप in a higher institution of India के अंदर जा करके आप further studies कर सकते हैं. So it is one of the benefit of this examination. Apart from that, the other examination, suppose if you want to go for your higher studies like PhD and postdoc, so again you need this particular qualification, because once you have this qualification, you will get some respectable amount of. Okay, I'm not audible. Yes, just tell me the voices. Sonali is saying that I'm not audible. Just make a confirmation. Audible. Thank you so much. Thank you. So if you want to go for your higher studies like postdoc and doctorates, so for that also you have to qualify. Once you qualify this exam, once you qualify this exam, you will get a one stipend or a fellowship amount, which will be a one approximate 32 to 35,000 if you're talking about per month. So इस चीज के लिए भी बहुत जरूरी है if you want to go for this particular segment. This is also one of the benefit. The other benefit is you can become an assistant professor. आप टीचर बन सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, आप assistant professor के लिए eligible हो सकते हैं, because the minimum eligibility criteria is you have to qualify CSIR net JRF, not actually JRF. If you want to go for LS only, LS lecturership. And the another exam what you can target just after this if you want to go for a lecturership program, so that is SET examination, state eligibility test examinations, right? So कई सारे options हैं, कई सारे फायदे हैं, कई सारे examinations जो भी life sciences में होते हैं, life science के अलग अलग examinations होते हैं, उनके बहुत सारे जो फायदे हैं उनमें से कुछ benefits आपके सामने हैं. And definitely these all benefits you will get once you qualify the CSIR net exam. Now, according to the data, what we generally have regarding the CSIR net examination, if you're talking about it, so देखने को मिलेगा कि if you're talking about the entire session, like अगर हम बात करें साल में 2 सेशन CSIR net exam के होते हैं, इन 2 सेशंस के अंदर approximate अगर मैं एक particular session की बात करूं, so this is a number of total number of students who generally appear for the examination. जी हाँ, अगर हम जून 2022 जो रिसेंट एग्जामिनेशन हो चुका है उस एग्जामिनेशन के डेटा को लेकर के बात करें, so this is what the total number of students who have appeared for the examination of CSIR net. But again, this is the total number of students, not only of life science. So कुल मिलाकर के पूरे साल approximate 3 लाख से 4 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं. But again, if you're restricting yourself only up to the life science, so this is what the total number, if you're talking about the previous examinations. After just COVID, if you see that, the total number of students who have appeared for the life science CSIR net examination, that number was 60,000. अगर मैं recent data के हिसाब से बात करूं, so that total number is
80,000. Yes, the number is like this. इतने स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं एंड अगेन द मेजर चंक फ्रॉम दिस नंबर इज अप्लाइंग फॉर अ JRF. Definitely the major target of majority of students, that is a CSIR net JRF, they want to qualify as a JRF, they want to get a junior research fellowship. So this is what the ultimate aim of majority of the students who want to qualify the CSIR net. और मैं आशा रखता हूं कि आप में से भी काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सपना है JRF ही क्वालिफाई करना, बिकॉज दिस इज व्हाट द one of the best, one of the good, or you can say the that particular qualification what you want actually, जो आपको चाहिए. आप LS क्वालिफाई होंगे, that's okay, वो ठीक है, वो अच्छा है, हो गया. But majority the people, if they are willing to give this examination, definitely their aim is to qualify JRF, right? JRF को ध्यान में रखते हुए, सेंटर पॉइंट रखते हुए, मैं आपको ये सारे सेशन के अंदर सारी बातें डेफिनेटली शेयर करूंगा. Along with that, I will also share the information related to the lectureship LS. So let's talk about the further data, like total number of students who have qualified the examination. जून 2022 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, so this data is of June 2021. This data is actually a data of recent exam, or the data which is given, that is the total number of qualified students. ये जो data है, this is of a previous result. Okay, so approximate 60,000 में से 7,500 students के आसपास, it is the approximate number what I'm saying, they have qualified the CSIR net examination. So 60,000 में 7,000 बच्चे qualify होते हैं. Means you can see, you can observe the exact ratio or proportion which is actually qualifying this examination. So examination is so actually on a broad level, at a national level, and many students, they willing to qualify this examination, but definitely the examination level is comparatively tough, and that's why this is what the amount of result what you can see. Now this amount may say the major part, if you can see that, that is a 3,400 and something, they are qualified as a lecturership. उन्होंने इस एग्जाम को as a lecturership के लिए qualify किया है. Now they can become a lecturer at any one of the institution, respectable institutions of India. They can join over there as an assistant professor. But after that, the next segment is JRF, Junior Research Fellow. Junior Research Fellow means if you qualify this examination as a JRF, that means if you enroll yourself for a PhD purpose, so you will get a monthly stipend of 32 to 35,000, right? That is for 5 years, right? So this is what the total benefit of the JRF, and the total number of JRF who were get qualified in the previous exam, that is 4,000 something. So ये है competition. ये data सबसे पहले क्यों दिया गया, ताकि आपको पता चले कि what you have to actually do, what you have to actually stake your mindset, and आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो ये कितनी मुश्किल है. वैसे मुश्किल नहीं है, मैं इस बात पर भी पहुंचूंगा कि ये मुश्किल नहीं है, but this is what the fact, this is what the actual data, right? So आपकी लड़ाई आपके क्लास के फ्रेंड्स के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई, आपका कंपटीशन आपके कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ नहीं है. आपकी लड़ाई, if you want to qualify this examination all over India में 80,000 स्टूडेंट्स के साथ है, 60,000 स्टूडेंट्स के साथ है who are appearing for this examination. So this is what the level of competition in this exam. Now let's talk about how we can target it, how we can prepare for it, and how we can easily get qualified to it. So let's talk about that. So मैं मान के चलता हूं कि काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता है what is exactly the CSIR net examination and what are the exact exam pattern and all. मैं सारी चीजें आपको बेसिक से कवर कर रहा हूँ. बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं. Exact situation क्या है if you want to qualify, if you want to go for this examination. So that data is also shared with you. Now let's talk about the exam pattern. The exam pattern is like the entire paper is divided into certain sections. Section A, Section B, Section C, or you can say Part A, Part B, and Part C. This is what the 3 different segments of this examination question paper. Now this question paper, if you're talking about the Part A, so Part A contains a general aptitude segment. General aptitude,
The first segment, part A, is the general aptitude, which contain all 20 questions, and they are on the basis of mathematical reasoning, logical reasoning, and various other type of segments of general aptitude. The part B and part C, they are from the subject life science. ये जो दो segment हैं, ये life science से हैं, जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, जो कि अभी आप prepare कर रहे हो. So this is what that core subject life science, and the paper one, or you can say part A, is from general aptitude. Now the total number of questions, if you're talking about in this question paper, so the total number of questions are 145. कितने questions कहाँ से होते हैं? So if you're talking about the total number of questions which is asked into the general aptitude part, so that is 20. The total number of questions which is asked in the part B, that is 50, and total number of questions which is asked into that part C, that is 75. And if you just make a total of this, you will get a 145 questions. So पूरा का पूरा पेपर 145 क्वेश्चन का होता है. वैसे हम इस पूरे डेटा के ऊपर एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे. 3 hour is a complete time duration of this examination. तो 3 घंटे में 145 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, और बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर पाएंगे. Yes, if you are prepared for this exam, if you are ready for this exam, then only. Right, so let's talk about other things. Okay, so आगे की चीजों पर बात करें. Now, if you're talking about to qualify this examination, so what is exactly the required things about this exam? जरूरत क्या है, क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है for qualification of this examination. So general aptitude, if you have a basic idea about calculations, if you have a basic idea about percentage calculations, then speed, distance, and various types of concept what you have already studied in your lower classes, like in a school. So the basic mathematical portion, ये काफी जरूरी सेगमेंट है अगर आप इस एग्जाम को बेहतर रैंक से क्वालिफाई करना चाहते हो. So you have to clear your basics of maths and other things, right? Only that is what the requirement if you want to solve the part A. Life science के segment को अगर देखें तो total life science it is actually comprises 13 different units. पूरे पेपर के अंदर 13 units हैं. हर यूनिट का अपना अपना वेटेज है, और अब इस के हिसाब से if you want to qualify, if you want to attempt part A, sorry part B and part C, so total 13 units syllabus के आपको prepare करने हैं, and once you prepare yourself, that is more than sufficient to get qualified. So बहुत जरूरी है, aptitude भी बहुत important है, life science का segment भी बहुत ज़्यादा important है, and likewise let's introduce the further portion. पूरे पेपर के अंदर number of questions क्या होंगे ये already आपको बता दिया गया है. Now from this maximum number of questions, you have to attempt only the few questions. याद रखें कि लाइफ साइंस के किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी. दिस एग्जामिनेशन इज one of the toughest for those students who have not prepared themselves, but all those students who have prepared themselves, for them this is one of the easiest examination. जी हाँ, जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए ये सबसे आसान, सबसे easiest examination है. कैसे, आइए बात करें. So part A, as I have already shared this information, you will get a 20 question, then a 50 question, and then a 75 question in part A, B, and C respectively. Now the total number of questions are 145 questions, and now the maximum number of questions what you have to attempt. आपको attempt कितने करने हैं? Now you have to attempt only and only 15 questions, that is maximum question what you can attempt into part A from total 20 questions. Now 35 questions what you can maximum attempt into a part B from 50 questions, and similarly a 25 maximum question what you can attempt from the total 75 questions. This is what the total number of question what you can attempt, right? Okay, तो इस हिसाब से कितने questions आपको attempt करने हैं पूरे पेपर में से, that is around 75 questions, and as you know you are having 145 questions. अगर मैं मोटा माटी हिसाब करूं तो कुल मिलाकर के ये 150 क्वेश्चन माने जा सकते हैं, और 150 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, that is 75. और अगर आप 75 के 75 अटेम्प्ट करते हो, सही कर देते हो,
तो आपका आउट ऑफ मार्क्स आ जाएगा, जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, है ना। 200 मार्क्स मत लाइएगा, ज्यादा हो जाएगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। दैट मीन्स again the aim is not this. We are not aiming to solve the all 75 questions because there is a maximum number of questions what we have to attempt, right? So 145 में से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर ऑप्शंस। ऐसा कोई एग्जामिनेशन मुझे बता दीजिए जिसमें 50% के अप्रॉक्स ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 50% से ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो ये सबसे जरूरी बात हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई कि 75 क्वेश्चंस हैं, बट इस 75 में से आपको करने कितने हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? मैं कहूंगा कि किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट को इसमें से 50 क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए, या चलो आपसे नहीं होता तो 45 क्वेश्चंस तो टारगेट करें ही करें। 45 questions, and I will assure you, you will get JRF once you make a 45 correct attempt in the examination. जैसे ही आप एग्जाम में 45 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपका JRF हो जाता है। ये सारे कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, लेट्स सी। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट ए इज हैविंग 2 मार्क क्वेश्चंस, पार्ट बी इज हैविंग 2 मार्क क्वेश्चंस, एंड पार्ट सी इज हैविंग अ 4 मार्क क्वेश्चंस की ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का और मार्क्स का। Then from part A you can maximum score 30, here you can maximum score 70, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्कोर आ सकता है 100, सब मिलाकर के टोटल मार्क्स का पेपर। तो ये कंप्लीट पेपर का टोटल मार्क्स है, टोटल स्कोर है, बट आपको इतना नहीं चाहिए। Okay, I don't know how to study, I didn't started anything yet. Okay Shruti, don't worry, I will explain you that entire portion, that is how to make your how to start your study and सारी चीजें, so don't worry. Okay, अभी तो हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि what is exactly the question paper pattern. Okay, let's see. So कितना स्कोर रखना चाहिए, कितना स्कोर आना चाहिए if we want to qualify a JRF, अगर हमें JRF क्वालिफाई करना है तो, ठीक। सो JRF क्वालिफाई करना है तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? ओके, सो मुझे लगता है कि मुझे एक बार एक छोटा सा मैसेज और कन्वे कर देना चाहिए। सो जैसे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो उस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन। वंस यू हैव आइडिया अबाउट दिस एग्जामिनेशन, तब आप डिसीजन लीजिएगा कि नाउ वी हैव टू गो फॉर इट और नॉट, आगे जाएं नहीं जाएं। Now it is your decision. So that's why I'm trying to explain about the examination, the pattern of examination, and once I have I will explain everything, then we will discuss that's how to prepare, how to start, right? चलो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आप में से श्रुति को प्रिपेयर करना है, तो श्रुति को कितना कट ऑफ टारगेट करना चाहिए, कितने स्कोर के टारगेट्स बनाने चाहिए, राइट? क्या एक सेफ टारगेट हो सकता है? So let's talk about that. So this is what the entire cutoff information, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास। हम यहाँ पर JRF के सेंस में ही सारी बातें कर रहे हैं, और अगर हम चाहें तो फिर लेक्चरशिप को लेकर के भी चर्चा हो सकती है हमारी। सो जून 2015 से लेकर के दिसंबर 2019 तक का डेटा यहाँ पर इस चार्ट में है आपके पास। अभी तक का मैक्सिमम कट ऑफ जो लगा है JRF के लिए वो लगा है 59.75, इट इज अ मैक्सिमम कट ऑफ, जी हाँ, टू गेट अ JRF। और मिनिमम जो रह चुका है वो 50 तक भी जा चुका है, 52 तक भी जा चुका है। सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम कट ऑफ। ये अगर हम बात करें 2 सेशन से पहले जो एग्जामिनेशन हुआ करते थे जिसमें परसेंटेज में कट ऑफ आया करता था, उसकी बात है। लेक्चरशिप के लिए थोड़ा सा यही वेरी कर जाएगा, राइट, कुछ 8 to 9% स्कोर कम होगा। Now introducing to the recent condition. Recent conditions में क्या हो रहा है? Recent conditions में 2 सेशंस हो चुके हैं एग्जामिनेशन में, और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो अब रिजल्ट आ रहे हैं that is coming in terms of okay, कोई बात नहीं। So now
इस केस में हम बात कर रहे हैं जो रीसेंट एग्जामिनेशंस थे। हाँ जी, रीसेंट एग्जामिनेशन, इसमें आने वाले जो भी रिजल्ट्स हैं या आने वाले जो भी कट ऑफ्स हैं वो क्या रह चुके हैं। तो रिसेंट 2 बार के एग्जामिनेशन से जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें कट ऑफ परसेंटाइल में लगा है। व्हाट इज एग्जैक्टली परसेंटाइल? परसेंटाइल का मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट है, जिसके सबसे ज्यादा स्कोर आए हैं, दैट स्कोर इज कंसीडर्ड एज 100%। एंड देन बाकी सारे बच्चों की कैलकुलेशन उसी हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाए। ये परसेंटाइल का पैटर्न है। और अब इस वजह से बहुत ज्यादा दिखता है कि फैब में कितना आया था, 98, 98, एंड जनरली हमेशा ही कट ऑफ जेआरएफ के लिए क्या रह रहा है, 98। बट दिस 98 is not a marks, this 98 is not a score, this is percentile, right? तो जेआरएफ के लिए जो अभी तक का मैक्सिमम कट ऑफ रह चुका है, हम देखेंगे ये कभी भी 60% के क्रॉस नहीं जाता, 60% के क्रॉस नहीं जाता, राइट? ओके, सो 60% इज अ टारगेट। किसी भी स्टूडेंट का अगर एग्जाम क्वालिफाई करने का सपना है तो डेफिनेटली, जी हाँ, डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 60% का टारगेट रखना पड़ेगा। नाउ यू हैव अ एम, नाउ यू हैव अ टारगेट इफ यू वांट टू गेट क्वालिफाई एज अ जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। तो अब आपका टारगेट आपके पास 60%। लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे आ सकता है 60%। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एंड नाउ दिस इज व्हाट अगेन एंटायर मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल। और हम कहते हैं कि अगर आप 120 मार्क्स लाना चाहते हो, 120 मार्क्स लाना चाहते हो, then definitely this should be your minimum target while attempting the exam। जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपके लिए रिकमेंडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड बाय मी, राइट? अगर आप इस रेंज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, आपके 120 मार्क्स आ जाते हैं, और अगर 120 मार्क्स आ जाते हैं डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई। तो अब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट बी इज 20, जिसमें से मैं कह रहा हूं कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए हैं। सपोज योर मैथ इज नॉट दैट मच गुड, आपका नाम उतना अच्छा नहीं है, राइट? तो नाम अच्छा नहीं है तो अब इस केस में क्या कर, सॉरी नाम कह दिया मैंने, आपके मैथ्स अच्छे नहीं है, करेक्ट? आपके मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स में आप बड़ा डरते हो, कैलकुलेशंस बढ़िया नहीं है आपका। सो नाउ इन दिस केस आउट ऑफ 20 आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पार्ट ए के अंदर क्या लेके आए, 0 0। दैट मीन्स डोंट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है, अंडर पार्ट ए। लेकिन आजकल की रिक्वायरमेंट है, आजकल की डिमांड है कि दैट इज यू हैव टू गो फॉर पार्ट ए, यू हैव टू डू अ बेटर इन पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए अच्छा करोगे सो ओवरऑल परसेंटाइल बेहतर रहेगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दैट रिकमेंडेड नंबर इज 6। ओके, बाकी अगर आप नहीं कंफर्टेबल है मैथ्स में सो आप 0 अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक? लेकिन वहां जो नंबर कम हुआ है, नाउ यू हैव टू इंक्रीज दिस नंबर इनटू पार्ट बी, आपको पार्ट बी में उसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। दैट मींस पार्ट बी में रिकमेंडेड है 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए कम से कम, तो आपको यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे। दैट मींस द नंबर विल इंक्रीज अप टू 24 एंड ऑल। सो यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से, टोटल 50 में से, और ऐसे 75 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अराउंड 18 क्वेश्चन अगेन। अगर आप इतने करेक्ट क्वेश्चंस निकाल लेते हो, जी हाँ, इतने करेक्ट क्वेश्चंस, सो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, आपके 120 आ जाएंगे। और 120 दैट मींस आपका कितना स्कोर आ गया, आपका स्कोर आ गया 60%। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जेआरएफ हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जेआरएफ हो चुका है। लेकिन क्या हम इतने एक्यूरेट हो सकते हैं कि 6 क्वेश्चन पार्ट ए में अटेम्प्ट किया और 6 के 6 सही हो गए, 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन पार्ट बी में अटेम्प्ट किया, 18 के 18 सही हो गए, 18 क्वेश्चन पार्ट सी में अटेम्प्ट किया, 18 के 18 सही हो गए, क्या आप इतने एक्यूरेट हो सकते हो, इतने एफिशिएंट हो सकते हो? अगेन नॉट पॉसिबल। ह्यूमन इतना ज्यादा एक्यूरेसी शायद ही दे सकता है, बिकॉज एरर्स नॉर्मल चीज है। कई बार उन परिस्थितियों में, एग्जाम प्रेशर में
गलती हो सकती है और ये लाजमी सी बात है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि चलो ये तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो 120 मार्क्स आएंगे और 120 आ गए दैट मींस आपका काम हो चुका है। सो चलो कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उनको लेकर के चर्चा करें और उसमें से कितने गलत हो जाए तो भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। सो नाउ डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट कि अगर कुछ कैलकुलेशंस कर लिए जाए तो अंदाजा आपको हो जाएगा कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन करने हैं तो मान लीजिए यहाँ पर आपने 6 के 6 क्वेश्चन किए या आपने टोटल कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपके 6 सही हो गए, 10 में से 6 सही हो गए और 4 गलत हो गए, राइट? या फिर 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो आप देखेंगे ओवरऑल द पोर्शन विल बी गेट कंपनसेटेड। ऐसे ही अगर आप 18 सही कर रहे हो और आपने टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जी हाँ 25 क्वेश्चंस, जो कि 50 में से 25 आ गए, बहुत कम है, और आपके 20 क्वेश्चन सही हो गए और 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जी हाँ 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 5 गलत हो गए तो आपके नेगेटिव मार्किंग में कितने जाएंगे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग और ऐसे ही इतने क्वेश्चन सही, दैट मींस 40 मार्क्स। और अगर आप देखें सो 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है, इट विल बी अराउंड 2.5। अगर आप इसे माइनस करोगे अभी भी आप 36 से ज्यादा हो, अभी भी आपका स्कोर 36 से ज्यादा है। दिस इज इन केस ऑफ पार्ट बी। पार्ट सी के लिए भी यही वाला स्ट्रेटजी काम करेगा। आपके 20 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके आ गए 80 मार्क्स और आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 5 क्वेश्चन गलत होने पर एक नेगेटिव मार्किंग है, दैट मींस -5। अभी भी आप प्लस में हो क्योंकि आपके मार्क्स कितने आ गए, 75। तो ये एक रेंज है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ताकि मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, एरर हो जाए, फिर भी हम उस सेफ जोन में ही रहें। 18 मिनिमम क्वेश्चन सही हो जाए, 18 मिनिमम क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाए सारे नेगेटिव मार्किंग्स के बाद, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन के जितने स्कोर आ जाए, अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं 120 स्कोर आपका आ जाएगा। 120 स्कोर आ गया दैट मींस यू विल क्वालिफाई, जेआरएफ हो गया। इफ यू आर बिलोंगिंग टू एनी वन ऑफ द कैटेगरी तो फिर आपको ये जो स्कोर है वो थोड़ा सा और लो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बफरिंग जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, राइट? अगर और 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी आपकी संभावना बनी रहेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि हाउ टू अचीव दिस, व्हाट 60% स्कोर और 60% मार्क्स, ठीक? क्या करना होता है सभी के लिए, बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है। बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए को लेकर के। पार्ट ए जो कि बहुत जरूरी सेगमेंट है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, पार्ट ए की तैयारी करनी पड़ेगी। पार्ट ए जितना ज्यादा आप तैयार करोगे, जितना आप बेहतर तरीके से तैयार करोगे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट, उतना ही आपका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग होगा। पार्ट ए स्ट्रॉन्ग होने से पार्ट बी के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी घट जाती है। और आज से 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हूबहू रिपीट हुए हैं, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल के पेपर भी सॉल्व करके जाएगा सीएसआर नेट एप्टीट्यूड वाला, तो भी उसको बाय डिफॉल्ट 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यस, बाय डिफॉल्ट 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। भले लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स से डर लगता है, राइट? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, अलाउद्दीन कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट एक बार कंफर्म करेंगे। ओके, यस इट इज विजिबल, थैंक यू सो मच। सो बहुत जरूरी सेगमेंट है और आज के प्रेजेंट टाइम पे हम इसे मिस नहीं कर सकते। सो बहुत सिंपल सा आपको तरीका बता दूं पार्टी की तैयारी करने का। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज यूट्यूब पर एक्टिवेटेड है जो दिन रात आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं। use those platforms, search those platforms and prepare yourself. बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो ये तो फ्री वाला पार्ट हो गया। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर एनीवेयर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आजकल ज्ञान हर तरफ बह रहा है, सिर्फ बटोरने वाला चाहिए, बटोरने वाला चाहिए। अगर आपका विल है तो वहां पर वे भी है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। So part is very important and if you want to qualify,
तो मैंने कह दिया कि क्या तरीका हो सकता है पार्ट ए को प्रिपेयर करने का। देखिएगा, तो 6 क्वेश्चंस जो हैं, ये 6 क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से सही करने हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका, जैसे मैंने कह दिया कि अगर आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्री में यूट्यूब बहुत जगह पर क्लासेस आपको मिल रही हैं, जस्ट उनको अटेम्प्ट करें, उनसे कुछ सीखें, ट्राई टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज और कई सारे इजी सेक्शंस को टारगेट करें। लिस्ट बना लें कि मैं एग्जाम में इन टाइप क्वेश्चंस को डेफिनेटली करूंगा। 20 to 30 टाइप क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए और ऐसे 20 to 30 टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखिए। टाइप कॉन्सेप्ट, नॉट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, और गारंटीड है 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, 30 अलग अलग कॉन्सेप्ट इजीएस्ट वाले प्रिपेयर करने हैं, उनकी लिस्ट बना के रखनी है, उनके टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है, और इतना करके देखो आपके 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में सही हो जाएंगे। ठीक, इजीली सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं मेन लाइफ साइंस वाले सेगमेंट पर। लाइफ साइंस पार्ट बी। पार्ट बी की तैयारी के लिए आपको डेफिनेटली यही करना है कि 20 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? या आपने मैक्सिमम 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 18 आपके सही हो जाए, है ना, उतना स्कोर आ जाए। इसके लिए क्या करें, वो गणित यहाँ पर दे रखी है कि 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नसीब बहुत अच्छा था, 20 सही हो गए, 8 गलत हो गए। 20 सही हो गया तो कितने मार्क्स आ गए, देखो 40 मार्क्स आ गए। 8 गलत हो गए तो कितना हो गया, देखो क्योंकि 0.5 नेगेटिव मार्किंग है तो कितना रह गया, 4 मार्क्स चले गए, अभी भी 36 आ गए आपके। खुश? इतना ही लाना था। या तो 18 सही करके ले आओ, निगेटिव मत करना एक भी, या तो 28 अटेम्प्ट करके 8 गलत कर जाओ, नसीब खराब है पूरी। 20 सही हो गए फिर भी काम बन जाएगा। दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज व्हाट द ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, आराम से हो जाता है, राइट? क्योंकि हमें 35 अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, 50 में से 35, हमें नहीं आते 35, हम 28 ही करेंगे, 28 में से 8 गलत भी करेंगे, है ना? इतना एरर लेने के बाद भी अगर आपके 36 स्कोर आ जाता है पार्ट बी में, तभी भी आपका स्कोर 120 हो सकता है। ऊपर कैलकुलेशन दे दिया गया है आपको। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो टोटल 13 यूनिट्स हैं पार्ट बी के प्रिपरेशन के लिए। हर यूनिट का 70% सेगमेंट प्रिपेयर करिएगा। जी हाँ, क्योंकि पार्ट बी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, अप्लाइड और मेथड्स इन बायोलॉजी। इस सारे टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स 100% आने चाहिए। अगर आप 70% पोर्शन भी प्रिपेयर करते हैं इस टॉपिक का, उस कंटेंट का, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आराम से आप इतने क्वेश्चन को निकाल पाओगे जितना हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। नाउ पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी में क्या स्थिति है? पार्ट सी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि दिस इज व्हाट द कोर ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि 50% वेटेज जिसका है, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। 25 25 into 4, the total marks is 100। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स इसी के पास, और अगर ये आपका निकल जाता है, इसमें अच्छे स्कोर आ जाते हैं, आपकी जीआरएफ कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, पार्ट सी। आपका टारगेट है 18 क्वेश्चंस का, चलो देखते हैं कैसे अचीव होगा। 25 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, 20 सही हुए, 5 गलत हुए, पहले ये वाला हिसाब किताब अपना हो चुका है। कितना आएगा आपको मालूम है, राइट? ये सारा हिसाब किताब हमने पहले भी कर लिया है। सो अगेन यस, इट इज पॉसिबल। आपका नसीब खराब था, 25 में से 5 गलत हो गए, लेकिन 20 सही है, फिर भी 18 क्वेश्चन सही होने के बाद जितना स्कोर आ सकता था आ जाएगा, और अगर आ गया तो आपका काम बन चुका है, आप जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं। एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। जी हाँ, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। सो ये है सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स। 50% तैयारी करें हर एक यूनिट का, ये नहीं करें कि 100% प्रिपरेशन चाहिए। पार्ट सी जो कि बहुत इजी, बहुत बेसिक, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कई बार एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने पर सारा आंसर ही निकल आता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप इसके लिए 50% पोर्शन भी प्रिपेयर करते हैं तो भी आपका जेआरएफ होने की पूरी संभावना है। नाउ दीज आर द सर्टेन टाइप क्वेश्चंस जो कि पार्ट सी में पूछे जाते हैं।
जब कभी भी आप पेपर को उठाएंगे, पेपर को डी कोड करेंगे, तो पता चलेगा कि 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मैच द कॉलम के मिल जाएंगे, जस्ट मैच द कॉलम्स। और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया होगा, या तो सही या तो गलत। अगेन 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, और इतने क्वेश्चंस में से भी आपका पासिंग क्वेश्चन निकल सकता है आराम से। उसके बाद ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ रीड करना आना चाहिए, अगर आता है तो सीधे सीधे आंसर आ जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। एंड देन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो थोड़े से टफ हो सकते हैं आपके लिए, बट प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में एक साइंटिस्ट बनने वाले हैं, एक पीएचडी स्कॉलर बनने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अच्छा होना चाहिए, कोशिश करें इसके ऊपर काम करने की, और वहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स, पढ़ा पता चल गया क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, ये भी आप टारगेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मैथमेटिकल साइंस के बच्चे नहीं हो आप, लाइफ साइंस के बच्चे हो, मैथमेटिक्स से डर लगता है तो अवॉइड करें। इतना भी अगर आप कर पाते हैं तो भी आपके आराम से 18 क्वेश्चन जितने मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो ये पूरी डिटेल एनालिसिस है पूरे क्वेश्चन पेपर की, एग्जामिनेशन पैटर्न की, एंड क्या करें एग्जाम को क्वालिफाई करने की, मिनिमम जो भी आपका टारगेट है उसे अचीव करने की। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, हो सकता है कि आज के सेशन में भी कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन है कौन सा यूनिट बहुत ज्यादा वेटेज वाला है, सर बता दीजिए, जैसे ही बताओगे उसकी तैयारी कर लेंगे और हो जाएंगे। तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि कोई भी यूनिट यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाली नहीं होती, इक्वल वेटेज होता है। जी हाँ, सारी यूनिट्स का इक्वल वेटेज है। सारी यूनिट से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन, सारी यूनिट से पार्ट सी के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। दिस इज व्हाट द पैटर्न। लेकिन कई बार ये मिथ, ये मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है कि इस बार बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, इस बार जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। वहीं बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा कहता है कि इस बार माइक्रोबायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में एक बैक्टीरिया का नाम लिख देने से, क्वेश्चन में एक प्लांट का नाम लिख देने से वो बॉटनी का क्वेश्चन नहीं हो जाता। याद रखें कि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से जोन का क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया है। सो देयर इज नो वेटेज डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, सारी यूनिट्स का इक्वल वेटेज है, ध्यान रखिएगा। ये है वो सारी यूनिट्स जिनकी तैयारी करनी होती है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, अप्लाइड मेथड्स, 13 मिनट्स। और मेजर टॉपिक्स मैं आपको आज ही बता दूं आपके सिलेबस से। आप एक बार ये सिलेबस डाउनलोड करिए, मैच करिए, आपके सिलेबस से ही मिलेगा। जी, आपके सिलेबस से, मतलब अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपका आधा सिलेबस यही है। लेकिन कई बार अप्रोच मिसिंग है, आपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन का अप्रोच बना रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच आपके प्रिपरेशन में नहीं है, आपकी स्टडीज में नहीं है, एंड इट इज वन ऑफ द लैग। और अगर ये अप्रोच आप ऐड करते हो आपकी प्रिपरेशन में, स्टडीज में, तो आपका 50% से ज्यादा प्रिपरेशन जब आप मास्टर्स कर रहे होंगे तभी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट टॉपिक्स। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इसके लिए किताबें कौन सी रेफर करें, तो किताबें स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के पीछे ना जाएं। स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पढ़ने पर आप हो सकता है ज्यादा ज्ञानी बन जाएं, या हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, सो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। हाँ, ये बात अलग है कि किसी चीज को रेफर करें, अगर कोई चीज फंस रही हो वहां पर जाकर के रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कई सारे कंसाइज नोट्स हैं, कई सारे प्रिसाइज नोट्स हैं, अप टू द मार्क वाले नोट्स हैं, मार्केट में बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर मिल जाते हैं। प्लीज गो फॉर दैट, उसके लिए जाएं, क्योंकि वहां कई सारा डेटा जो आपके शायद काम का नहीं है, स्पेशली एग्जाम के लिए तो काम का नहीं है, वो उसमें नहीं होगा, और ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार के स्टडी मटेरियल्स के लिए जाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। नाउ स्ट्रैटेजी कि आपकी 13 की 13 यूनिट्स प्रिपेयर होनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि 13 की 13 यूनिट्स के आप मास्टर महाज्ञानी बन जाएं, जी नहीं, नो नीड टू बिकम मास्टर इन एनी सब्जेक्ट।
जस्ट एंड जस्ट बिकम अ स्टूडेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट, आप उसके स्टूडेंट विद्यार्थी बन जाए, आप उसके जानकार बन जाए, बस, मास्टर नहीं बनना है. If you will have a clarity about your subjects, all these 13 units, that is more than sufficient. That is more than sufficient. जब आप उस लेवल पर जाओगे कि आप मास्टर मानने लगोगे अपने आप को, तब तो आप टीचर बन जाओगे. तब आपको पढ़ाना चाहिए, आपको फिर आपको एग्जाम देना नहीं है, आप पढ़ाओ, उसकी तैयारी करवाओ. सो फिर से मैं बता दूं कि all the students who are preparing, who are qualifying this exam, they are not a master of their subject, they are just a student of their subject. और उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट की जानकारी है, वो उसमें उस्ताद नहीं है, उसमें मास्टर नहीं है, फिर भी जेआरएफ होता है, फिर भी क्वालिफाई होते हैं. सो ये जो अगेन एक बड़ा सा आपके मन में ख्याल है, डर है कि उस टॉपिक का मास्टर बनना पड़ेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जस्ट एंड जस्ट यू शुड नो अबाउट दैट टॉपिक, दैट सब्जेक्ट. आफ्टर दैट कि सपोज मेरी इच्छा हुई कि मैं बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ना चाहता हूँ. बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स, हाँ जी, प्रेस्कॉट, माइक्रोबायोलॉजी, शाबाश श्रुति बेटा. For certain topics, yes, you can go for Prescott. Like if you're talking about the microbial classifications and all, आप use कर सकते हो. But again, it is not a total material which is required. Okay. तो suppose आप बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए? अगेन नॉट रिक्वायर्ड. अगेन बिकम अ स्पेसिफिक, बिकम डायरेक्टेड और टारगेटेड. क्या करना है? देखो, कई सारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि कई अलग अलग प्लेसेस से आपको मिल जाएंगे, दे आर हैविंग अ एनालिसिस. यस बेटा, एनालिसिस. और ये एनालिसिस क्या है कि किस टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं. फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल, हर साल क्वेश्चन आया है, कभी एक कभी दो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ये तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे बायोकेमिस्ट्री में से. Okay, after that, next one, suppose a principle of catalyst, that means enzymatic activity, enzyme kinetics and all. ये पढ़ेंगे, हर साल क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं. नेक्स्ट हो गया न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे. देन मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ेंगे. सो कुछ ऐसे सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तैयारी करनी है. और बाकी क्वेश्चंस में से देख करके कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन है, जस्ट प्रिपेयर दैट टॉपिक, डोंट गो फॉर द एंटायर बुक. टारगेटेड लर्निंग, टारगेटेड स्टडी चाहिए, राइट? अगर आपने इतने एफर्ट लगा दिए, सो कोई भी, जी हाँ, कोई भी एग्जामिनेशन इंडिया में नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते. Once you have prepared yourself for all the topics, now start targeting certain topics. Select करें कि हो सकता है इस पूरी प्रिपरेशन में आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स बन गए हो. फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स आपका फेवरेट बन गया है. फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी आपका फेवरेट बन गया है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका फेवरेट बन गया है. सिग्नलिंग आपका फेवरेट बन गया है. प्लांट फिजियोलॉजी आपका फेवरेट बन गया है. और इसी के साथ साथ इकोलॉजी जो मेरा फेवरेट है, और इसी के साथ साथ में भी आप अप्लाइड बायोलॉजी में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं. तो आपने सेलेक्ट किए अप्रोक्सीमेट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यूनिट्स जो आपके फेवरेट है. मान लीजिए 7 to 8 यूनिट्स, दैट इज व्हाट द मोर देन सफिशिएंट टॉपिक्स. फिर से मैं कह रहा हूं, नो नीड टू प्रिपेयर द एंटायर थिंग, बट जस्ट स्टडी ऑल द टॉपिक्स वंस. एक बार पता जरूर होना चाहिए, राइट? इससे फायदा ये होगा, you can cross link the things, you can correlate the things, that is what the need. And once you prepare yourself, just target 7 to 8 units, and that is more than sufficient to qualify the exam. काफी है. ये भी क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर मैक्सिमम कितने यूनिट्स को टारगेट करें, इसका भी जवाब मैंने आपको दिया है. व्हाट वी शुड डू टू अचीव इट, ये सब करने के लिए क्या करें? वही बात फिर से कहूंगा, पढ़ाई करें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल फॉलो करें. न कि टाइम टेबल बनाएं, फिर टाइम टेबल को फॉलो करने के टाइम टेबल बनाएं, फिर उसको फॉलो करने का टाइम टेबल बनाएं, फिर उसको फॉलो करने का टाइम टेबल बनाएं, और बस खाली टाइम टेबल ही बनाएं. ऐसा नहीं करना है. जस्ट मेक अ प्लान, फॉलो द प्लान, दैट्स इट. ओके, सो मेन तरीका तो यही है. बाकी एक एक करके जानकारी दे दे. जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट करें आपकी प्रिपरेशन को, आपके सारे टारगेट्स जो भी आप अचीव करेंगे, जो भी आप सेट करेंगे, टारगेट को अचीव करें. टाइम टाइम पर कितने टाइम में क्या टॉपिक हो जाना चाहिए, प्रिपेयर करते रहें, पढ़ते रहें,
किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो तो ज्ञान जैसा मैंने कहा कि हर तरफ बढ़ रहा है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, जस्ट डू रेफर दोस थिंग्स, बहुत कुछ है जो फ्री में है। नाउ नेक्स्ट, मेक योर शॉर्ट नोट्स, प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स। ब्रॉडली टॉपिक को समझ लिया, उसके शॉर्ट आउटलाइंस, प्री डायग्राम्स, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, नोट्स बनाइए, बहुत काम आएगा। आपको लगेगा कि मैं आज के आज ही ये टॉपिक पढ़ा सकता हूँ अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज वी शुड प्रिपेयर आवर ओन नोट्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मेनली स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हो गए, आधी जीत आपकी हो चुकी है, आधा लड़ाई आप जीत चुके हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज take some more sources of questions, try to solve them, and before your final exam, go for some mock test and all. रिविजन करते रहें, जो भी आप प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज डेली करना होता है, वीकली बेसिस पे करना होता है। 21 डेज की साइकिल आपको याद होगी कि अगर 21 डेज अगर साइक्लिक फैशन में आपने रिविजन कर लिया, सो दैट इंफॉर्मेशन विल बिकम परमानेंट इन योर ब्रेन, है ना। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वंस यू प्रिपेयर योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट वन, जितने भी डाउट्स आते हैं कोशिश करें कि आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स जो आपके साथ हैं, उनसे हमेशा आपके डाउट्स की क्लियरेंस ले लें। डेफिनेटली आज हर एक कॉलेज के अंदर नेट, जेआरएफ, सेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और आप उन्हें आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, जी हाँ, यूज कर सकते हो। मैं तो कहूँगा यूज कर सकते हो, यस, बिकॉज दे आर रेडी टू गिव यू ऑल द पॉसिबल थिंग्स। बट बच्चे ही होते हैं जो बड़े शरारती होते हैं, नादान होते हैं, और वो उनका उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते। सो आपके जितने भी डाउट्स आए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस डाउट्स। किसी एक मेंटर के साथ आप जुड़े और उनसे आपके सारे डाउट्स टाइम टाइम पर क्लियर करते रहें, बहुत जरूरी सेगमेंट है, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली एट द एंड, जब एग्जामिनेशन आ रहा होगा, बिफोर योर एग्जामिनेशन try to give a certain mock test, 1 2 3 4 5 जितने आप दे सकते हो, बिकॉज आपको उस एग्जाम का फाइनल डे में क्या एग्जीक्यूट करना है उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सो फाइनल डे क्या करेंगे, इस 5 मॉक टेस्ट में सारे ट्रायल एरर करके एक पैटर्न सेट करना है, और फाइनली आप उस दिन जब एग्जाम की डेट होगी, एग्जाम हॉल में आप होंगे और 3 घंटे आपके पास होंगे, उस 3 घंटे में आप उस पेपर को इसी प्रकार से हैंडल करेंगे जैसे मॉक टेस्ट में किया था और मैक्सिमम स्कोर लाए थे। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेक अ एनवायरनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो मॉक टेस्ट देना काफी जरूरी है, और फिर से वही सारी समरी कि जो भी प्रिपरेशंस हैं टॉपिक्स की वो करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें, एंड दिस इज व्हाट द साइक्लिक फैशन, यही आप अगर साइक्लिक फैशन में करते हैं, सो दिस इज व्हाट द फाइनल की to get qualified in the exam. So thank you so much. बहुत ध्यान से आपने सारी बातें सुनी हैं, और हैप्पी लर्निंग फ्रॉम माय साइड, एंड मेरी तरफ से जो सेशन है वो एंड हुआ। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, गुड बाय। All right. Thank you, sir. So, participants, do you have some questions for sir? Although he has explained everything very well.
Right. So Shruti, just again I'm repeating my sentences. Standard references के लिए ना जाए. Okay, वैसे आपको नाम ही सुनना है. So the first biochemistry के लिए you can go for Leininger. For cell biology you can go for Cooper or Lodish. For molecular biology you can go for Watson. Developmental biology के लिए आप Gilberts में जा सकते हो. Right, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा. But again, these references are a huge information. पूरा information का भंडार है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा. So आप समराइज्ड और कंसाइज नोट्स के लिए जाएं, राइट? और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है. So this is my suggestion. बाकी आपकी इच्छा है. सौरभ जी कह रहे हैं कि व्हाट इज दैट 21 डेज साइकिल रिवीजन. 21 डेज का ऐसा है कि जब आप किसी टॉपिक को कुछ एक 21 डेज में इतनी टाइम रिवाइज कर लेते हो. फॉर एग्जांपल सपोज आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सो आज ही आपने उसके नोट्स बनाए, अर्ली मॉर्निंग उठ करके उसका रिवीजन किया, फिर एक रिवीजन अगले दिन किया, फिर एक रिवीजन अगले दिन किया. दैट मीन्स एक हफ्ते पूरा आपने एक रिवीजन पैटर्न फॉलो कर लिया. फिर आपने अगले हफ्ते में, पूरे हफ्ते नहीं, एक दिन या 2 दिन का रिवीजन किया. एंड देन लाइकवाइज अगर आपने 21 डेज ये पैटर्न ऑफ रिवीजन फॉलो किया एक ही टॉपिक को लेकर के, दैट टॉपिक विल बिकम परमानेंट. दैट टॉपिक विल बिकम परमानेंट इन योर ब्रेन. तो ये है. It is necessary to qualify the GPAT or other competitive exam. नहीं बेटा, GPAT is different and CSR net is different. ये दो अलग बात है बेटा. Okay. LS details. LS details के लिए बड़ी सिंपल सी बात है. आपको मैंने 120 का टारगेट दिया था, आप उस टारगेट को 100 कर दो, दैट्स इट, आपका LS हो जाएगा. या 110 कर दो, ठीक है. आप थोड़े क्वेश्चन और कम कर सकते हो, कैलकुलेशन चेंज, दैट्स इट. ओके, लेक्चरशिप का पे स्केल क्या है बेटा? अगर आप आज भी किसी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हो, इफ यू आर जस्ट नेट क्वालिफाइड, आपका इनिशियल सैलरी 80,000 प्लस होगा आज के टाइम में. बट अगर आप PhD होल्डर हैं, सो इट विल बी अराउंड 1 लाख, है ना. 5% का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाता है, सो इट विल बी अराउंड 1 लाख, नॉट एग्जैक्टली 1 लाख. ये स्टार्टिंग पैकेज है बेटा. मैं मुंबई जैसे सिटीज कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, ना कि किसी रिमोट एरियाज में. ओके सर, आई एम परस्यूइंग MSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट, हाउ टू. ओके, आपकी BSc आई होप बेटा जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उसमें ही हुआ होगा. और अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस से ही हैं तो जस्ट चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज बी फार्मा के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं बेटा, तो डेफिनेटली आप भी दे सकते हैं. सिमी को मैंने जवाब दिया था वैसे. हाउ टू अप्लाई फार्मेसी स्टूडेंट्स, यस बेटा, अगर आपका बी फार्मा हो चुका है, एम फार्मा हो चुका है, सो यस यू कैन गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन. आप अप्लाई कर सकते हो. प्रोसीजर इज सेम, द प्रोसीजर इज ऑफ एप्लीकेशन इज एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है. ओके, राइट. नाउ एनीवन एल्स? Any other questions? So, we thank you, sir, for such a wonderful talk and for enlightening us about this competitive exam. I'm pretty sure that all the participants will agree on how amazing the session was. As we have come to the end of the webinar, I would also like to thank all the participants for making this session more lively and interactive. I would also thank the core team of the Nature's Eye for helping me to make this event successful. As mentioned, we have a 2 days workshop on a study guide for preparation of CSI NET GRF on 2nd and 3rd December 2022. And for this workshop, the original price is rupees 599 only. And for the people who have attended this webinar today, we are providing you a discount of rupees 449 till 20th of November per person and rupees 499 till 25th of November per person. To know more about this event, please visit website for further details.
The link to it has been shared in the chat box as well. Also, we kindly request the participants to fill the feedback form shared in the chat box. Once again, thank you all. थैंक यू सो मच एंड एक क्वेश्चन था कि सोनाली जी का कि हम अपीयरिंग में अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा यस अपीयरिंग में Sure. आप अप्लाई कर सकते हो राइट बट आपका मास्टर्स का जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर आपका एग्जाम हुआ होना चाहिए फोर्थ सेमेस्टर अगर आपका बाकी है यस यू कैन अप्लाई राइट थैंक यू सो मच